हाय। हेलो मैम। सो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगी, जैसे आपका नाम क्या है, आप आपका उम्र क्या है, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? Yes, of course. My name is Evangelina Massi and I live in Delhi उत्तम नगर और मेरी एज 12 है और मैं एक स्टूडेंट हूँ माउंट कार्मेल स्कूल की। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप, इवेंजलिना? मैम मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। अरे वाह। एंड यू आर जस्ट 12 years old, राइट? यस तो मैम। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है? यस मैम। अच्छा, तो उस पे क्या करते हैं आप? मैम आई प्रीच ऑन दैट। यू प्रीच? आई टेल गॉड्स वर्ड हाँ, ओके। एंड हाउ ऑफन डू यू डू दैट? twice in a week. Twice a week. Okay. And when did you start? Um, at my birthday When at was 10th July. 10th July? What a wonderful way to celebrate your birthday by preaching Yes, God's word. Uh, okay, thank you ma'am. my pleasure. Who gave you the idea? Ma'am, actually, my mother gave this because she was telling me for this from last 1 year, and at my occasion, I thought this is the best time to do this and open my channel. So I did it that time. Okay, how wonderful. So, how do you do it? I mean, do you record it first, and then uh, do you put it live, or do you record it and edit it and then put it live? How do you do it? Ma'am, I first record it and then edit it and then put it. You edit it by yourself? Yes, ma'am. Wow, Evangelina, I'm so proud of you. You know, when I teach Thank you, students, ma'am. when I like what they say, I have this thing that I learned from somebody else. I say, fantastic. So that's how I feel when I hear you saying you record your own videos, then you edit your own videos, and then you upload them. Amazing. I have to say, praise the Lord for His grace on you. Right. Thank you, ma'am. My pleasure. You're welcome, Evangelina. So, Evangelina, जब आपको पता चला कि आप इस चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हो, इनवाइट करे गए हो, तो आपको कैसा लगा? Ma'am, आई फील वेरी नाइस एंड उस टाइम मैं थोड़ी नर्वस भी हुई थी कि क्या होगा कैसे होगा, तो बट मेरी मम्मा और पेरेंट्स ने मुझे स्ट्रेंथ दी और पावर दी और फिर मैंने गॉड से भी प्रे किया कि वो मुझे पावर दे और फिर मैंने ये इंटरव्यू में भाग लिया। हाँ, ओके, ऑलराइट। सो आपने इतनी सारी चीजें अपने बारे में बताई। सो टेल मी, हाउ डिड क्राइस्ट और जीसस find you, or how did you become so close to him? That the reason I'm asking is because you say you preach the word on your YouTube channel, so that means to say you're close to Jesus, right? So how यस did that whole relationship start? Actually, ma'am, when I was too small, so my mother always told me that preach God words and grow in Him. And she told me too many stories and parables of Jesus. So I was growing in God, and God talked to me also. And there are many testimonies in my life from which I came closer to the Lord. Okay. I saw my mother doing God's word, telling me stories. So I thought that I should also do that. But she did it in home. But I wanted it to preach outside. Okay, so you also said that there are many testimonies. Tell me one testimony. Yes, ma'am. Ma'am, one is the greatest testimony that put me near to God. That
Once I had typhoid, jaundice, and my liver got damaged, All and I together? was admitted. Yes, All, ma'am. all three together? Yes, ma'am. Wow. Okay. So I was admitted in the hospital, and my parents and everybody, all the fellowship that we had, prayed hardly for me, and I also prayed for myself. And at that time, in 1 week only, God healed me, but I was sick from 2 3 months, but God healed me in the hospital only in 1 week, and I praised God too much, and that bring me to closer to the Lord. Okay. So you got healed of typhoid, you got healed of jaundice, and you got healed of one, Yes, what else? liver damaged, Liver but damage. but Yeah. by the grace of God, we were admitted in the hospital, and the doctor treated me. Wow. And you were out within a week. Yes, ma'am. Praise the Lord. That's amazing. All right. Okay. So, Evangelina, uh, after you came to, It was done I'm sorry, completely. you got healed completely. So, Evangelina, um, I suppose you read the Bible every day. How do you spend your time with the Lord? Tell me a little about what do you do? What does your prayer look like? Prayer time. What does it look like? Ma'am, in the morning I wake up, and my mother always told me that when you wake up, जब भी तुम उठते हो, उठते के साथ ही दुआ करने बैठ जाया करो. तो फिर I spend time 1 to 2 minutes in that. Then after being fresh and all, and I put a half hour or 1 hour at least to pray God and read Bible. And it is it it is at 8 o'clock. Okay, till I 8 do o'clock. that. Till 8 o'clock, you do that. Okay, all right. Yes. Okay. So, you do you remember some of your favorite verses from the Bible? Yes, ma'am. Tell me one verse which is your favorite. And my favorite verse is John chapter 3, verse 16. Okay. Wow. All right. So go ahead. Tell me what it is in Hindi only. It doesn't matter Hindi or English. It doesn't matter. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Wow. And how do you use that verse to? How does it help you? How does that verse help you? Ma'am, first I thought that this is for the whole world, but when I grow in knowledge of God, in wisdom of God, then I think it as God has given His Son for only and only for me, and I thought that I should be get away from the sins and all the bad habits in my, and that I like the that it is my favorite. That is why. Okay. So this verse, has it changed you, Evangelina? Yes, ma'am. Can you tell me how you have changed? Ma'am, when my mother and father told me, or if I've listened in some of the preaching of pastors, so I thought that um, God takes so much of sins and take so much of sin and upon him, so much bad things, और सारा दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिया. तो फिर मुझे क्या करना था कि मैं चाहती थी कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो फिर मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए. एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनके लिए अच्छी बनूं अपने पेरेंट्स के प्रति, और दैट मेड अ चेंज इन माय लाइफ. Hmm. Okay. Sometimes is it difficult to live that kind of a life? यस मैम, इट इज. हाँ, उस टाइम पे आपको कैसे इंस्पिरेशन मिलता है या कैसे आपको स्ट्रेंथ, हाउ डू यू गेट योर स्ट्रेंथ व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो हिम? मैम, जब भी व्हेनेवर इट हैपेंस, मेरे अंदर कुछ मीन्स मेरे अंदर मम्मी पापा की बातें आ जाती हैं कि
कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, क्योंकि वो दोनों भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए। तो मेरे अंदर ऐसा आता है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं, और देन वो मेरे अंदर चेंज लाता है, ओके, वो मुझे इंस्पायर करता है। अच्छा। So, do you know about the Holy Spirit, Evangelina? यस मैम। So, do you have a relationship with him? मैम, व्हेन आई डू गुड हैबिट्स इट इज इन मी, आई बिलीव दैट। Okay, when you do good things, he is the one who does it. You believe that. यस मैम। Lovely. यस। All right. So, have you read the verse in the Bible which is in Matthew 6:33? नॉट येट मैम। Okay, why don't you open it and read it? यस ऑफ कोर्स। इट्स इन मैथ्यू Chapter 6, verse 33. verse 33. Yes, ma'am, I got it. Should I read it? Yes, go ahead, read it. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay. So, do you think, Evangelina, कि आप सोचते हो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हो? आपको लगता है ये आप करते हो? यस मैम। जब भी मैं खोजती हूँ तो मेरे अंदर फीलिंग आती है कि मैं गॉड को खोज रही हूँ, और मुझे उस टाइम गॉड की ज़रूरत है। और जब भी मुझे गॉड की ज़रूरत होती है अपनी कुछ स्टडीज़ के अंदर या फिर किसी चीज़ की हेल्प के अंदर, तो फिर मैं गॉड को खोजती हूँ, और उस टाइम मुझे ये फील होता है कि मैं गॉड के लिए सीख कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ गॉड को। और उस टाइम पे आपको गॉड की मौजूदगी महसूस होती है? यस मैम। अच्छा, तो उसकी वजह से, ऐसे करने की वजह से, आप जब भी आप मुश्किल में होते हो, या तो आपको विजडम चाहिए होता है, या तो आपको नॉलेज चाहिए होता है, समझदारी चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है, यस। उस टाइम पे जब आप प्रे करते हो परमेश्वर से, प्रभु से, कि आप मुझे ये विजडम दो, या समझदारी दो, या समझ दो, तो उसकी वजह से आपकी जिंदगी में काफी असर पड़ा होगा, आपकी पढ़ाई में असर पड़ा होगा, और यस आपके मैम। क्लासमेट्स की जिंदगियों पर भी असर पड़ा होगा, आपके भाई बहनों के ऊपर भी असर पड़ा होगा। उन सब के बारे में कुछ घटनाएं याद हैं तो आप हमें बताएंगे? यस मैम, मेरी वैन के अंदर मैं स्कूल जाती हूँ, तो फिर उधर जब मैं छोटी थी और जब मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया था और वैन ज्वाइन नहीं करी थी, तो फिर उस टाइम पर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और सब मुझे बुली करते थे, मुझे चिढ़ाते थे, और मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। तो फिर उस टाइम मेरा मन करता था कि मैं उनको चिल्लाऊँ, उनको डाँटूँ, उनको मारूँ। लेकिन फिर मेरी मम्मा ने मुझे इंस्पायर किया कि ऐसे नहीं करना, और मैं मम्मा को आके बहुत रो-रो के बताती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। और एक टाइम एक लड़का था हमारी वैन के अंदर, तो उसने मुझे बाइट कर लिया था मेरे हाथों पर, एंड 4 इस वाले हाथ पर, 4 राइट वाले हाथ पर किया था। और उस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, और फिर मेरे पापा को उसके बारे में पता चला, और फिर हमने उनके पेरेंट्स से बात करी, और उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि जब भी ऐसा होता है तब हमें बता दिया करो, और सबसे बड़ी बात कि उनको उल्टा मत मारो, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अपने गॉड से बोलो। तो फिर मैंने अब सब एनिमीज़ के लिए, जितनी भी मेरी वैन के अंदर थी, वो सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि मैंने गॉड से प्रेयर करी उनके लिए कि वो मेरे प्रति अच्छे बने, और वो मेरे फ्रेंड्स बने, तो फिर गॉड ने उन सबको अब मेरा फ्रेंड्स बना दिया है। अच्छा, ओके, गुड। और अ, जैसे आपके पढ़ाई में आपने देखा है कुछ असर? यस मैम। और मेरी पढ़ाई के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है असर, कि जब मैं गॉड से प्रे करती हूँ और गॉड से प्रे करके अपने टेस्ट वगैरह देती हूँ, सो आई गेट नाइस मार्क्स इन दैट। हाँ। एंड और मुझे सब चीज़ें अपनी क्लासेस के अंदर, जो भी अभी क्लासेस हो रही हैं,
उन सब के अंदर मुझे सब कुछ अंडरस्टैंड होता है। और मेरी मम्मा हमेशा एक बात कहती हैं कि जब भी पढ़ाई करने बैठो या फिर क्लासेस पे बैठो, हमेशा अपनी बुक्स पे हाथ रख के दुआ करो। तो जब मैं वो करती हूँ तो मुझे सब कुछ अंडरस्टैंड होता है और मैं उन सब प्रॉब्लम्स वगैरह को सब सॉल्व कर पाती हूँ अपने क्लासेस के अंदर। ओके, अमेजिंग। ऑलराइट, अभी आपका जो ये जिंदगी है, जिस वजह से जिसमें आप परमेश्वर से हर चीज के लिए दुआ करके शुरू करते हो, या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको दुआ से टैकल करते हो, तो अम, आपकी। मैम हमेशा नहीं कर पाती। हाँ बोलो। जब भी करते हो। हमेशा नहीं कर हमेशा नहीं कर पाती, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि ये करना चाहिए। और गॉड की होली स्पिरिट भी मुझे कहती है कि वो करना चाहिए। और समटाइम्स मुझसे लीव हो जाता है, समटाइम्स मैं कर लेती हूँ। अच्छा, और जब आपसे गलतियां हो जाती है, तब आप गॉड को कैसे अप्रोच करते हो? मैम मैं गॉड से माफ़ी मांगती हूँ कि सॉरी गॉड। और हम जब रात को हम पूरी फैमिली बैठ के डिवोशन करते हैं, और उस टाइम पर मैं स्पेशली अपने आप के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं गलतियाँ ढेर सारी करती हूँ, तो फिर उस चीज़ के लिए मैं गॉड से माफ़ी मांगती हूँ। और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर एक इम्प्रूव आता है कि मैं वो उन गलतियों को ज़्यादा लेती नहीं हूँ, उन गलतियों को रिपीट नहीं करती हूँ। वाह, ऐसी और कोई। आजकल मेरी गलतियाँ भी कम होती जा रही हैं गॉड की दया से। अच्छा, तो ऐसी कौन सी गलती थी जो बहुत बार आप करते थे और आप आजकल उसको बहुत कम करते हो? अम्म, मैम मैं स्टडी टाइम पर नहीं करती थी। अच्छा, ओके, अ, बोलो। मैं मैं काफ़ी बार मैं काफ़ी बार लेट बैठती थी, लेकिन अब जब मैं गॉड से प्रेयर करने लग गई, गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगी, तब अब मैं अपनी स्टडी टाइम पर करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से आपने इसी रिश्ते के जरिए, जो रिश्ता आप जीसस से शेयर करते हो, उस रिश्ते के वजह से आपने चैनल शुरू कर दिया। यस मैम। मैम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि गॉड का एक चैनल खोलो, और मैंने ये खोला। और मुझे खुद भी कभी महसूस होता था, पहले मैं चाहती थी कि मैं क्रिएटिविटी का चैनल खोलूं, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरी प्रीचिंग के लिए, और जो भी मैं गॉड का वर्ड शेयर करती हूँ, तो फिर और मेरी मम्मा मुझे काफ़ी बार मेरे बारे में बताती थी कि मेरे बारे में भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि मैं अच्छी प्रीचर बनूँगी। तो फिर उसकी वजह से मेरे अंदर एक इंस्पायरनेस खुली कि मुझे भी एक अपना चैनल खोलना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसके अंदर हेल्प दिया। मुझे बहुत ज़्यादा अम, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाया उसके अंदर, और अब मैं अपना चैनल कर सकती हूँ अपने आप। सही बात है। तो उस चैनल में जो मैसेजेस आपने अच्छा, पहले आपने बोला कि आपको आपको प्रीचिंग के लिए बहुत अप्रिशिएट करा जाता था, तो कहाँ प्रीच करती थी चैनल से पहले? मैम मैं अपने पेरेंट्स के बीच में ही करती थी, रात के डिवोशन के अंदर। हाँ, ओके, वाह। सो आपके पेरेंट्स ने आपके प्रीचिंग के जरिए काफी कुछ सीखा। और मैं सॉरी मैम, आपके कैन आई ऐड समथिंग? या ऐड ऐड। और मैम मैंने अपनी क्लास के अंदर भी प्रीचिंग करी है। हाँ, वहां पे मौका कैसे मिल गया आपको प्रीचिंग करने की? मैम मीन्स उस टाइम नहीं, आजकल हमारी एक क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम गॉड का वर्ड शेयर कर सकते हैं, और हर चाइल्ड को एक बारी बारी मिलती है। और मैंने स्पेशली मैम से बात करके, हमारी एक अटोन मैम है, वो क्रिश्चियन है, तो फिर मैंने स्पेशली उनसे बात करके कि हमें अपने एक क्लासेस रखनी चाहिए, इसलिए मैंने वो क्लासेस करवाई। और उसके अंदर अब काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, और हम सब बारी बारी हर वीक सैटरडे 5 PM टीचिंग करते हैं।
वाओ, अच्छा, बढ़िया, और बहुत गॉड की वर्शिप करते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया मौका है। भी तो हमारी वीक के अंदर टेस्टिमनीज होती हैं, वो सब हम उसके अंदर शेयर करते हैं। रियली ओके, इस हफ्ते की क्या टेस्टिमनी है आपकी? इस बार की मेरी जो टेस्टिमनी है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं ये सैटरडे वाली, वो कभी कभार पोस्टपोन भी हो जाते हैं, तो फिर इस बार मैं गॉड ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया कि मैं सिंगिंग सेशन हम उसके अंदर जोड़े। तो फिर और हमने उसके अंदर सिंगिंग किया, और उस टाइम मेरी बारी थी फर्स्ट सिंग करने के लिए, और मैं अच्छे से रेडी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड ने मेरी हेल्प करी और मैं अच्छे से सिंग भी कर पाई। और मेरा मुझे वचन भी देना था, तो फिर आई शेयर द गॉस्पेल, एंड माय गॉड हेल्प मी इन दैट, एंड प्लस माय मदर आल्सो हेल्प मी इन दैट। ओके, और गॉड की दया से वो सब कुछ अच्छा हुआ। ओके, ऑलराइट। सो इवेंजेलिना, आपकी जो चैनल है उसमें कितने मैसेजेस हो गए होंगे अब तक? तो मैम 9 9 मैसेजेस, उनमें 9 मैसेजेस। अच्छा, उनमें से कोई मैसेज आपको याद है क्या? यस मैम, मैंने अभी अभी लेटेस्ट डाला है कि गॉड्स लव बियॉन्ड द इमेजिनेशन। हाँ, ओके। सो उसका जिस्ट क्या है, उसका संक्षिप्त में क्या है मैसेज? वो समरी कि ब्रीफ। जो गॉड हमसे प्यार करते हैं वो इनफ नहीं है, वी शुड आल्सो लव हिम, एंड दैट brings a great connection between us। ओके, वाओ, और जब हम देखते हैं कि गॉड ने हमें अपनी ओन इमेज में बनाया, गॉड ने हमारे लिए काफी सारे काम किए हैं, तो फिर गॉड का हम लव इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो ह्यूमंस की इमेजिनेशन से बाहर है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। ओके। सो इन सब मैसेजेस के लिए आपको मैटर कहाँ से मिलता है? मैम, कभी कभार गॉड मुझसे बात करता है, और कभी कभार मेरे डैडी मुझे बताते हैं जब मुझे नहीं मिलता, और मेरी मम्मी मुझे कुछ शेयर करती हैं, तो फिर उसके अंदर मैं कुछ ऐड करके वो कभी कभार करती हूँ। सो आपका मैसेज कितने टाइम का होता है? मैम, पहले वो 3 to 4 मिनट्स का होता था, अब मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा थोड़े बड़े टॉपिक्स होने लग गए, तो फिर मैं उनको लॉन्ग कर देती हूँ 5 to 6 मिनट्स तक का। हाँ, ओके। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा, और आपके आपको पता है आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? यस मैम, 44 सब्सक्राइबर्स। वाओ, ऑलराइट, गुड, एक्सीलेंट। तो ये आपने सिर्फ आपके थैंक यू मैसेजेस मैम। सुन यू वेलकम, आपके मैसेजेस सुन सुन के लोगों ने सब्सक्राइब किया? यस मैम। और मैंने कुछ स्टार्टिंग के अंदर कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, अपने आसपास के लोगों से जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि वो सब्सक्राइब करें, और फिर मेरे डैडी ने भी कुछ लोगों को सेंड किया था, और फिर वो लिंक बनते गए, और फिर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। बढ़िया। आपको कांटेक्ट करने के लिए आपके चैनल पे कमेंट सेक्शन पे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं? यस मैम, मैं उनके लिए कभी भी अवेलेबल हूँ, मेरे डैड उनके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, तो आपका चैनल का नाम बताएंगे? गॉड ब्लेस आवर नेशन। गॉड ब्लेस आवर नेशन। ओके, यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैं ज़रूर उसका इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे लगा दूंगी, इस थैंक वीडियो यू के मैम। नीचे, तो ताकि लोग आएं और आपका चैनल देखें और आपसे इंटरेक्ट करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you, Evangelina. Thank you so much. You're my youngest interviewee, youngest guest till now. थैंक यू मैम, I- इट्स माय प्लेजर। it was my pleasure interviewing you, and I hope God blesses you थैंक immensely. यू मैम।
Thank you very Thank you, much, ma'am. Evangelina. Take care. Bye bye. Have a great day.